Hello students, welcome in video session of your English class. Today I am going to tell you a new story of your Marigold book. The name of the story is The Talkative Barber. Do you know the meaning of the word talkative? The meaning of the word talkative means a person who speaks a lot, and the meaning of the word barber means a person who cut hair. Before going through the story, I want to tell you the introduction of the story which is given in your book. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a long kingdom. His queen was a good storyteller. Each night, she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. Means, in the old days, there was a sultan whose name was Shahryar, who was the king of a big kingdom. His wife was a very good storyteller, and she tells a story to him every night. The story was about the culture of Persian and Arabic countries. The Talkative Barber is also one of the stories taken from the book Arabian Night. Let's see the story of the Talkative Barber. Read this story about a man who can't stop talking. Means this story is about a man who always kept talking. In the city of Kaskar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of saving him. The Sultan got angry. कैस्कर नाम की एक सिटी में एक बार्बर रहा करता था जो कि बहुत टॉकेटिव था। एक बार सुल्तान ने उसे अपने हेड को सेव करने के लिए बुलाया, अपने बालों को सेव करने को बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग. As you all know that he was very much talkative, तो वो बात करना स्टार्ट कर दिया. Instead of saving, सेव करने की जगह पे. The Sultan got angry, और सुल्तान गुस्सा हो गए. When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम अपना काम कब स्टार्ट करने वाले हो और कब अपनी बातें बंद करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatter. आपने मुझे एक दर्द दिया है मुझे चैटर बुला के. सुल्तान ने उसे टॉकेटिव कहा और उसने कहा कि इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं बहुत आहत हुआ हूँ. For everyone says I am very quiet. सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ. I have 6 brothers whom you might call chatters. मुझे 6 भाई हैं और मेरे भाइयों को आप चैटर बुला सकते हैं. Their names are बकबन, बकबरिया, बकबक, अलकूज, अलनसी, सकाबक. All are the names of the brothers of the barber. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. But I am the youngest of my family. The barber said that my all brothers are defective. One has hump on his back. मीन्स वो सीधा चल नहीं सकता है, उसके बैक पे हम्प है, ऊंचा उठा हुआ है. वन इज़ टूथलेस, दूसरे के पास दांत नहीं है. वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक
आँख से अंधा है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, वह दोनों आँखों से अंधा है, बिल्कुल देख नहीं सकता। वन इज़ डेफ, एक सुन नहीं सकता है। अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो दूसरा है वह साफ साफ बोल नहीं सकता है। ही कांट स्पीक क्लियरली बट ऑल आर वेरी टॉकेटिव। ही सेड दैट, वो सब के सब बहुत बातूनी है। आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपने घर का सबसे छोटा मेंबर हूँ। Here is the picture of 6 brothers of the barber. Look in the picture. Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be safe today. Sultan was very much angry listening the speeches of the barber, and he said, give him 3 gold coins, and let him go. I don't want to be served today. My master, cried the barber. जैसे ही सुल्तान ने उससे कहा कि तुम जाओ, और अपने मंत्रियों को कहा कि इसे गोल्ड के सिक्के दे दो, और आज मैं सेव्ड नहीं करवा पाऊँगा। बार्बर क्या कहता है? माई मास्टर, क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, मैं नहीं आपके पास आपको लेने आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू। आपने मुझे ऑर्डर दे के यहाँ बुलाया है, अतः जब तक मैं आपको सेव नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपके घर से नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद वह दूसरी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया जो कि आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. वो सुल्तान कहा कि तुम अपने इस बकबक को बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। I have an affair of greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है और मुझे दोपहर में बाहर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to save you." जैसे ही बार्बर ने देखा कि सुल्तान सही में एंग्री है, उसने कहा कि आप गुस्सा मत होइए, मैं सेव करना स्टार्ट करता हूँ, और वह सेव करना स्टार्ट कर दिया। Saying this, he washed the Sultan's head and began to save. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hasty in this matter." ऐसा कहते हुए उसने सुल्तान के हेयर को गीला किया और उन्हें सेव करने लगा। जैसे ही वह 4 बार सेव किया होगा सुल्तान को, वह फिर से रुक गया और कहा कि मास्टर, आप इस मैटर में शीघ्रता कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर्ड द सुल्तान। सुल्तान ने उसे ऑर्डर दिया कि मुझे सेव करते रहो, ज़्यादा मत बोलो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर। बार्बर ने कहा कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. उसने फिर से कहा कि आप जो करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप कौन सा इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, मुझे बताइए ताकि मैं अपनी सलाह आपको दे सकूं। फिनिश सेविंग एट वंस, द सुल्तान exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half-saved to go and see what time it was. सुल्तान चिल्लाते हुए बोला कि मुझे
सेव कर दो, प्लीज़ मुझे जल्दी सेव कर दो। फिनिश सेविंग एट वंस, एक बार में मेरे पूरे बालों को सेव कर दो। बट ऐसा नहीं करते हुए बार्बर ने क्या किया, वह सुल्तान को आधा ही सेव छोड़ दिया और टाइम देखने को चला गया। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान चिल्लाते हुए कहा कि अब मैं ऊब गया हूँ। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, वो बोला धैर्य रखिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए मेरे आका, और मैं जल्दी ही आपको सेव कर दूंगा। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, ऐसा कहते हुए वह फिर से सुल्तान को सेव करने लगा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, ऐसा करते समय वह बोलना बंद नहीं किया, बोलता रहा। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, आई वुड give more advice which you might find useful, he said. उसने कहा कि अगर आप मुझे उस इम्पॉर्टेंट अफेयर के बारे में बताएंगे तो मैं आपको और कुछ एडवाइस दूंगा, यूज़फुल सलाह दूंगा उस बारे में। द सुल्तान वॉज completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब सुल्तान पूरी तरह से फेडअप हो चुका था, अपना धैर्य खो चुका था, और उसने यह डिसाइड किया कि वह बार्बर को सेटिस्फाई करेगा, बता देगा कि क्या मैटर है। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ feast to some friends at noon, which was why he was in the hurry to leave. उसने यह कहा कि वह दोपहर में अपने कुछ दोस्तों को भोजन पर बुलाया है, यही वजह है कि वह बहुत शीघ्रता में है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जैसे ही बार्बर ने यह सुना कि सुल्तान ने एक फिस्ट रखा है, भोज रखा है, वह आश्चर्य से सुल्तान की तरफ देखने लगा, और ऐसा करते हुए वह बोला, That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. उसने कहा कि अरे मुझे भी याद आया कि कल मैं अपने घर पर अपने 4-5 दोस्तों को आज खाने पे बुलाया था, इनवाइट किया था। But I had quite forgotten it and have not made any preparation. और मैं इस बारे में तो बिल्कुल भूल गया था और मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम। सुल्तान जो कि पूरी तरह से बार्बर की दया पे था, वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान बोला जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो। एंड यू शैल हैव ऑल फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुमको वो सारा खाना दे दिया जाएगा जो कि आज मेरे लिए तैयार किया गया है। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। उसके बाद बार्बर ने कहा कि प्लीज़ मुझे वो सारा खाना दिखाइए ताकि मैं ये जज कर सकूं, निर्णय ले सकूं कि वह मेरे 5 दोस्तों के लिए सफिशिएंट है या नहीं। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, सुल्तान ने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एनफ खाना है। सुल्तान exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. और परंतु उसने यह भी ऑर्डर दिया कि जितना खाना मेरे लिए तैयार किया गया है वह यहाँ लाया जाए। द बार्बर looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." बार्बर ने ऐसा कहा कि ये सब के सब बहुत अच्छे हैं, पर मैं थोड़ा फल भी चाहता हूँ खाने के बाद खाने के लिए, एज अ डेजर्ट। The Sultan, in desperation,
since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. सुल्तान जो कि अपने हाफ शेव्ड हेड के साथ बहुत परेशान था, होपलेस हो चुका था, उसने ऑर्डर दिया कि कुछ फल भी लाए जाएं। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. What did the barber do after that? बारबर क्या किया? बारबर सुल्तान को सेव करना छोड़ दिया और एक एक करके सभी डिश को एग्जामिन करने लगा। इसमें उसे आधे घंटे का समय लगा। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently, but the barber did not hurry. सुल्तान इस दौरान अपने पैरों को गुस्से में पटकते रहे, पर बार्बर ने कोई जल्दी नहीं दिखाई। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." At last, उसने फिर से रेजर उठाया सुल्तान को सेव करने के लिए, पर कुछ ही मिनटों में वह फिर से सेव करना बंद कर दिया और बोला कि मैं कभी नहीं जानता था कि आप इतने उदार हैं। एंड व्हाट डिड यू ऑल ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट्स? डिड द बार्बर सेव द सुल्तान? नो, टिल द एंड ऑफ द स्टोरी the barber did not save Sultan, and again he started talking because he was very much talkative. In my next video, I will come with the new words of the lesson with question answer and exercises and summary of the story. Till now, you all have to go through the story line by line. Stay safe at your home. Thank you.